राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू ने आज कहा कि संसद और विधायिकाओं में महिलाओं की भागीदारी बेहद अहम है। महिला आरक्षण विधेयक को पारित करने की संसद में उठी मांग के बीच उन्होंने कहा कि लोकसभा में लंबित इस विधेयक को राजनीति से ऊपर उठकर महिला अधिकारों के लिए पारित करने की जरूरत है, लेकिन ऐसा देश में व्यापक राजनीतिक सहमति के बिना होना मुश्किल है। शून्यकाल के दौरान विभिन्न दलों की महिला सांसदों ने एक स्वर में 1/3 आरक्षण दिलाने वाले विधेयक को पारित करने की जरूरत बताई। राज्यसभा में लगातार दूसरे दिन शुक्रवार को अच्छा कामकाज देखने को मिला। कार्यवाही की शुरुआत में ही सभापति ने समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन की ओर से महिला आरक्षण विधेयक के मुद्दे पर दी गई नियम 267 के तहत नोटिस का संज्ञान लिया। उन्होंने नोटिस को स्वीकार नहीं किया, लेकिन सभी राजनीतिक दलों को इस मुद्दे पर बोलने का मौका दिया। The women members of the house, they have given notice and they have also met me and they made a request in the house also that they may be permitted to raise the issue of lack of proper representation for women in parliament. I have decided now to take up that as the first issue today in the 0 hour. There is a unnecessary rumor that is going around saying that we are against the reservation bill. We are not against the reservation bill. We are for the reservation bill. But we have certain recommendations. The women reservation bill in its present form would only benefit rich and urban women and not the poor and rural women. A provision of sub-reservation for other backward classes, women and Dalit women should be added to the bill with 33% reservation for the same. विभिन्न दलों की महिला सांसदों ने भी इस बारे में अपनी राय रखी, लेकिन सभी की राय इस बारे में एक मत थी कि वक्त आ गया है जब महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाए। Bengal and Trinamool have already taken care of women reservations. So, sir, what the Bengal thinks, Bengal's thought today, let India thinks tomorrow. Sir, my party Trinamool Congress is already party in India, which is practical terms has already implemented women reservation even before the bill is passed. बिना रिजर्वेशन के महिला को नहीं देंगे, टिकट भी नहीं मिलते ना लोकसभा में, राज्यसभा में तो होता है, पार्टी सिलेक्ट करता है, इसके बाद इलेक्शन होता है, लेकिन लोकसभा, नॉट ओनली लोकसभा, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में भी ऐसे ही होता है, असेंबली में तो छोड़िए। So I would urge the central government, bring the bill now. It is the right time. 9 years have passed, but now you have to you bring the bill in the Lok Sabha, pass it in the Lok Sabha because you have enormous majority. Pass it in the Lok Sabha and bring the bill now that women should be given equal representation, not only 33%. We are asking for equal representation. My second point is, more women in both houses will enhance grace, wisdom, and harmony. Number 3 point, sir, very short point. Anyhow, when the bills are passed in both houses, they should not come as hand-downs from the male members of any party. It should be done with a lot of grace, and deraye, durustaye, that should be the feeling. Thank you, sir. Thank you. We've always been supporting this bill, and we've written to the government many times to bring this bill and to pass it in the parliament. We are with you. We support this bill, and I think it is very, very, very important. We see what is happening in Sabarimala. We see, women are just, there's so much discrimination against women in this country. So to address that, I think our voices should be heard and laws cannot be made without women. Thank you, sir. अगर हम विमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं और विमेन को हक देने की बात करते हैं, जहां कई ऐसे बिल लाए जा रहे हैं जो एक पर्टिकुलर विमेन को हक देने की बात, हम उसके हक में हैं, लेकिन सभी विमेन्स का देखना होगा, तब तक एम्पावरमेंट नहीं आ सकती जब तक वो डिसीजन मेकिंग में नहीं आती है, उनको डिसीजन लेने
का हक नहीं मिलता है, उनको लॉ बनाने का हक नहीं मिलता। मैं चाहूंगी कि आज जो चर्चा हो रही है इसमें महिलाओं को नौकरियों में भी 35% आरक्षण मिले और ये पूरे हिंदुस्तान में लागू कराने का काम किया जाए। बहने कह रहे थे कि जहाँ पे मुख्य धारा में निर्णय की बात आती है वहाँ पे महिलाओं को सम्मान दिया जाना चाहिए, इसका हम सम्मान करते हैं, निश्चित ही ऐसा होना चाहिए। पर आप जब से देख रहे होंगे कि आदरणीय इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब से बागडोर संभाले हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जहां जहां पे है वहां पर आज 50% आरक्षण 50% आरक्षण महिलाओं को दिया गया, जिसके जीते जाते उदाहरण मैं यहाँ पे हूँ। महिलाओं को संसद और विधायिकाओं में 1/3 आरक्षण मुहैया कराने से जुड़ा बिल 2010 में राज्यसभा से पारित हुआ था, लेकिन उसके बाद इस पर मामला आगे नहीं बढ़ पाया क्योंकि सभी राजनीतिक दलों में इसे लेकर सहमति नहीं दिखी। अभी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में 13% से कम महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। पंचानन मिश्रा, राज्यसभा टीवी।